رضوان صاحب انمیوٹ کر لے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام, کیا حال چال؟ خیریت سے ہیں, آپ سنائیں. مست ہے ایک دم رضوان بھائی, جی سب سر خیریت بالکل سے. رضوان بھائی خیریت. کچھ دلیل لائے ہیں کہ قرآن کو جلانا بلاسفیمی میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ دیکھیے قرآن جو ہے نا, اللہ تعالی یہاں پر جو بات ہے قرآن, ہم اگر یہاں پر قرآن پر اگر کوئی ایکشن لے رہا ہے یا پھر کوئی اس پر کیس کر رہا ہے, کیا کہتے ہیں کہ بے حرمتی کرنے والے پر, وہ اس معنی کر ہوتا ہے تاکہ آئندہ جو ہو کوئی انسان اس طرح کی ہمت نہ کرے, اور کیا کہتے ہیں کہ یار اس کو رضوان بھائی ایک بات تماشا کروں اور آپ سے, رضوان بھائی ایک بات کروں آپ جی سے. بالکل اس بولے بلاسفیمی بولے. کی سزا جو ہے نا, جس بندے نے قرآن جلایا اس کی بجائے آپ کو زیادہ ملنی چاہیے. پتہ کیوں؟ اس بلاسفیمی کی دیکھیے سزا آپ کو ملنی چاہیے. آپ پوچھیں کیوں؟ میں کیوں پوچھوں گا, کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے یہاں پر جو کیا کہتے ہیں نہیں, کہ آپ نے میری بات سنی ہے؟ میں نے کیا بولا؟ اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ اپنی بات رکھیں. میں نے کیا بولا سر آپ ابھی؟ اپنی بات پر رضوان بھائی میں نے ابھی کیا بولا؟ آپ نے میرے سے سوال کیا تھا, میں نہیں سر, میں پوچھوں نے کا نہیں آپ سے جواب آپ سوال کیا تھا. میں نے نہیں آپ سے سوال کیا تھا. میں نے آپ سے سوال کرنے سے پہلے ایک سٹیٹمنٹ بولا تھا. میں نے کہا تھا قرآن کی جب بھی بلاسفیمی ہوگی انڈیا کے اندر, اس کی سزا ہاں ہر مسلمان کو ملنی ہاں چاہیے. پہلے آپ کو پہلے ملنی چاہیے, وجہ بتاؤ. کیونکہ آپ کے نبی نے بولا تھا کہ قرآن کبھی کفار کو مت بیچنا, اور کفار کے گھر میں, کفار کے شہر میں کبھی قرآن مت لے کے جانا. آپ لوگوں نے قرآن بیچتے ہو, بیچتے ہوئے آپ انتلے بندے سے نہیں پوچھتے ہو تم مسلمان ہو, ہندو ہو, کافر ہو, کون ہو. آپ لوگ اس کو قرآن بیچتے. نمبر 1. نمبر 2, انڈیا ایک نان مسلم دیش ہے. آپ نان مسلم دیش میں قرآن لے کے گئے ہیں, تو چونکہ آپ لوگوں نے خود بلاسفیمی کرائی ہے. انڈیا میں ہر وہ بندہ جو قرآن کی بلاسفیمی کرے گا اس کے قصوروار آپ لوگ خود ہیں, کیونکہ آپ نے خود ان کو قرآن بیچا ہے اپنے نبی کی سنت نہ مان کے. تو بھائی جان یہ تو آپ لوگوں کی غلطی ہے, کسی کی غلطی تو نہیں ہے. اچھا, یہ جو آپ نے کہا قرآن کے بارے میں کہ کافروں سے قرآن نہ بیچنا وغیرہ وغیرہ, جو آپ نے حوالہ دیا, تو اس کا کچھ حوالہ دے سکتے ہیں؟ مطلب کہ آپ آئیے حدیث بتا دیں یا پھر آئیے سر, آئیے. میں سر آپ کو پتا نا, حضرت آدم سیکر علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی ریفرنس کے بغیر بات نہیں کرتے. جی, میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہوں اور میں ریفرنس کے بغیر بات نہیں کرتا. یہ اسلام کی وے کا پہلا آرٹیکل ہے. شیخ محمد صالح المنجد کہتے ہیں رولنگ آن گیونگ اے کاپی آف دا قرآن ود ٹرانسلیشن ٹو اے کافر. آنسر پڑھتے ہیں. وی پٹ دس کوشچن ٹو شیخ محمد ابن صالح بھائی ال ہیلو آدم بھائی دلیل آئے گی اس میں. آدم بھائی کین رضوان یو بھائی پلیز دلیل آئے میرے گی, تھوڑا صبر کرے. دیکھیے میرے کین یو بھائی پلیز سنیے, آپ سے میں آپ سے ایک زپ اپ, بات کہوں. آپ کین یو پلیز جی, زپ یور ماؤتھ. میں انگریزی میں نہیں جانتا, آپ کیا آپ اردو اپنے عربی. کیا اپنے زبان کو لگام لگا سکتے ہیں سر؟ میں ٹرانسلیٹ تھوڑے کر دیر دوں کے گا لیے آپ کو. رضوان بھائی, آپ کو مجھے پتا ہے آپ کو کیا چاہیے, آگے اس کی دلیل آئے گی. تھوڑا سا رک جائیے رضوان بھائی, ریکویسٹ ہے آپ سے, اچھے پیارے بھائی, آپ اچھے سے بات کرتے, آپ کو اوکے دلیل چاہیے, مل جائے گی. تھوڑا رکے تو صحیح, آپ کے علماء کا اس پہ کیا کہنا ہے, کیا فتویٰ ہے, وہ تو سن لے, دلیل بھی آ جائے گی. وی پٹ دس کوشچن ٹو شیخ محمد ابن صالح. ہم نے یہ سوال شیخ محمد ابن صالح سے کیا, وٹ از دا رولنگ آف گیونگ اے کفار اے کاپی آف دا قرآن کنٹیننگ دا ٹیکسٹ ان عربک. کیا شرع ہے قرآن کو دینے کا جس کے اندر قرآن کا عربک ٹیکسٹ ہوگا؟ جواب دیکھتے ہیں, باقی کمنٹری اور ٹرانسلیشن بات کی بات ہے. جواب دیتا ہے وہ اللہ پر وغیرہ. وٹ از نون امنگ دا اسکالر, جو کہ اسکالرس کو پتا ہے, is that it is not permissible to give a kuffar power over the Quran. اوئے ہوئے ہوئے, کفار کو قرآن کے اوپر طاقت نہیں دینی اسکالرس کے مطابق. بٹ if a kafir is sincere in his desire to know about Quran, لیکن اگر کوئی کافر واقعی میں سیریسلی سمجھ رہا تھا قرآن کو, a person can invite him to come to a library, either a public library or his home library, where he can show him the Quran. آپ اس کو اپنے گھر کی لائبریری میں یا پبلک لائبریری میں بلا کر قرآن دکھا سکتے ہیں.
if you find a translation of the meaning of the Quran without the Arabic text, اگر آپ کو ایک ایسا قرآن مل جائے جس میں عربک ٹیکسٹ نہیں ہے, صرف اس کی ٹرانسلیشن اور میننگ ہے, then there is nothing wrong with that giving to a kafir. تو آپ وہ ٹرانسلیشن وداؤٹ عربک ٹیکسٹ دے سکتے ہیں. تو جناب یہ کفار کو قرآن پہنچانا یہ آپ لوگوں کی خود کی غلطی ہے. آئیے ایک اور آرٹیکل پڑھتے ہیں, یہ islamweb.org کا ہے, آپ کو حنفی آرٹیکل بھی دکھا دیتے ہیں. giving a copy to a non Muslim, یہ کہتے ہیں giving the Quran to a non Muslim if it does not contain Arabic text, only translation, then it is permissible. قرآن کی کاپی کسی کافر کو دینا جس میں عربک ٹیکسٹ نہیں ہے وہ تو جائز ہے. if it contains Arabic text, that is not permissible. اگر اس پہ عربی لکھی ہوئی تو پرمیسیبل نہیں ہے, کیونکہ حدیث مبارکہ ہے the prophet said prohibited traveling with the Quran to the non Muslim countries. محمد نے نان مسلم کنٹریز میں قرآن کی کاپی لے کر جانے سے منع فرمایا. therefore آپ قرآن نان مسلم کو نہیں دے سکتے, اور اگر دیا ہے تو واپس لے لو. واپس بھی لے لو, اگر دے دیا تو واپس لے لو, اگر دے دیا ہے تو واپس لے لو, اور پھر اللہ سے معافی مانگو کہ آپ نے ایسا کیا تھا. معافی بھی مانگو اللہ سے. کتنی بڑی کتنا بڑا گناہ ہے کہ معافی بھی مانگنا ہے ایڈم صاحب. بالکل. ایک اور لیتے ہیں, giving Quran translation to Arabic text to non-Muslim. As for giving Quran Arabic text with translation to non-Muslim, it is not allowed. وہ بالکل الاؤ نہیں ہے. میں نے لاسٹ سائل صاحب اسٹریم کے اینڈ میں اس بات کے اوپر اپنی سمری کے اندر بولا تھا, سمری کے اندر بولا تھا, لیکن میں نے ڈسکشن میں نہیں بولا تھا. جی میں نے کہا تھا یہ نیکسٹ ٹائم کھولیں گے. ٹھیک ہے, دیکھیں سلولی کھولتے ہیں چیزوں کو. میں نے اس کے اوپر انگلش چینل کے اوپر اسٹریم کی ہوئی ہے جب یہ واقعہ شروع ہوا تھا نا اینڈریو ٹٹے کا. ٹھیک ہے, تو اس وقت میں نے اس کے اوپر اسٹریم کی تھی کہ بھائی جان غلطی کس کی ہے؟ غلطی مسلمانوں کی ہے. یہ نان مسلم کنٹریز میں قرآن لے کے گئے. اگر قرآن کی بے حرمتی ہو رہی ہے نان مسلم کنٹریز میں تو اس میں قصور مسلمانوں کا ہے, کیونکہ محمد نے قرآن کو نان مسلم کنٹری میں لے جانے سے منع فرمایا. یہ دیکھیں یہاں پہ فقہ پہ آ جاتے ہیں. امام النووی reported from امام مالک and from other that dislike dealing with dinar and dirham that contained Allah's name. اللہ کا نام بھی نہیں ہونا چاہیے دینار اور درہم میں. مسلم jurist not allowed to impure Muslim to touch the Quran. ایک نان مسلم impure ہے, وہ قرآن کو ہاتھ لگائے گا, بائی ڈیفالٹ ہاتھ لگانے سے بے حرمتی کر گیا. جلانا تو دور کی بات ہے کیونکہ وہ impure ہے, وہ نجس ہے. This ruling applied to non-Muslim with a greater reason since that they are ritually impure, as Allah says, verily the mushrikeen, polytheists, pagans, idolaters, disbeliever in the oneness of Allah and in the messenger of Muhammad are najis. نجس ہیں, وہ امپیور ہیں, فلتھی ہیں. بائی ڈیفالٹ انہوں نے اگر قرآن کو ہاتھ لگایا تو وہ بائی ڈیفالٹ بلاسفیمی کر گیا. What is said is true with the Quran contains Arabic text. However, it is allowed to give non-Muslim Islamic literature. Islamic literature دے دو, تفسیر دے دو, قرآن نہیں دے سکتے. محمد کہتا ہے O people of the scripture, come to the word that is between you and worship وغیرہ وغیرہ, bear witness of Muslim. Hence, آپ صرف اور صرف ٹرانسلیشن آف دا قرآن دے سکتے ہیں وداؤٹ دی عربک ٹیکسٹ. آپ صرف ٹرانسلیشن آف دا قرآن دے سکتے ہیں وداؤٹ دی عربک ٹیکسٹ. آئیے ایک فتویٰ پڑھتے ہیں. یہ فتویٰ, یہ جناب فتویٰ آیا نوبل قرآن کا. Now read the fatwa. It says, it is not permissible for a non-Muslim to touch the Quran because he is impure. یہ فتویٰ ہے کہ قرآن کو نان مسلم ٹچ بھی نہیں کر سکتا. آپ یہاں پہ نان مسلموں کو قرآن بیچتے ہیں, آپ نے اپنا بزنس بنایا ہوا ہے, قرآن کی بے حرمتی ہو رہی ہے, آپ لوگوں کی وجہ سے ہو رہی ہے. سزا مسلمانوں کو ملنی چاہیے, شریعہ نافذ کرو اس چیز کے اوپر, مسلمانوں کو سزا دو اس چیز کے اوپر. ہر سنگل مسلمان جو قرآن بیچتا ہے اس کو سزا دو. وہ قرآن شریعہ کے مطابق قرآن کی بے حرمتی کر رہا ہے. انڈیا میں قرآن بکنا ہی نہیں چاہیے. محمد نے کہا ہے کہ آپ نے نہیں لے کے جانا. نان مسلم انکلین ہے, فلتی ہیں. وہ دیکھیں قرآن کی رولنگ ہے, indeed it is a noble Quran registered well protected, none touch it except by purified. Purified کے علاوہ کوئی ٹچ نہ کرے. یہ فتویٰ ہے کہ آپ قرآن کو نان مسلم کنٹری میں بیچ نہیں سکتے, لے کے نہیں جا سکتے. یہ سارے امپیور ہیں, فلت ہیں. آئیے دیکھتے ہیں ایک اور رولنگ ایک بندے کی.
Scholars all agreed, unanimous agreement है, it is unlawful to let the unbelievers hold the Quran if it is in Arabic. यूनैनिमस एग्रीमेंट है कि कुफार को कुरान टच ही नहीं करने देना जब तक उसके अंदर अरबिक लिखा हुआ। अल बुखारी ने लिखा है, अल बुखारी में लिखा है एंड द मुस्लिम में लिखा है कि प्रॉफिट फॉरबेड, प्रॉफिट ने मना किया था टेकिंग द कुरान विद अस व्हेन ट्रैवलिंग टू द लैंड्स ऑफ द एनिमीज, दैट इज नॉन मुस्लिम लैंड। क्योंकि इस्लाम में कंट्रीज नहीं होती, इस्लाम में लैंड होता है, ठीक है। दारुल हरब, दारुल इस्लाम। अगर इस्लाम का शरिया नाफिज है तो दारुल इस्लाम है, अगर इस्लाम का शरिया नाफिज नहीं है तो दारुल हरब है। तो दारुल हरब को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हुए ये एनिमी लैंड कहते हैं। नाउ मेरे भाई मुझे बताओ, मैंने आपको इतने फतावाज दिखाए, कुरान के रेफरेंस दिए, हदीस के रेफरेंस दिए, मुझे बताओ इंडिया में कोई भी कुरान की ब्लास्फेमी करे उसकी सजा उस काफिर को मिलनी चाहिए या आप लोगों को मिलनी चाहिए? बताइए सर। ठीक है, मुझे इजाजत है बोलने की। जी सर, जो सवाल किया उसका जवाब दीजिएगा, लेफ्ट राइट ना जाइएगा प्लीज। मैंने इतना बोला तो किसी वजह से बोला। देखिए, आपने माशाल्लाह बहुत अच्छे हवाले दिए, लेकिन मैं आपको यही बात कहना चाह रहा था, आपने मुझे खामोश करा दिया। आपने ये, मैं आपसे ये कह रहा था कि आप जितने भी, आवाज गई आपकी। आप मुझे कहते जितने भी हवाले दे रहे हो वो उर्दू में दो भाई, मैंने उर्दू में ट्रांसलेट कर दिया ना साथ साथ एक एक सेंटेंस को। मदरसे में पढ़े हुए लोग जिनको अंग्रेजी की एबीसीडी नहीं आती उसी के लिए ट्रांसलेट किया था, अपने व्यूअर्स के लिए नहीं किया था। 90% ऑफ द व्यूअर्स कैन अंडरस्टैंड एंड कॉम्प्रीहेंड अ लिटिल बिट ऑफ इंग्लिश जो कि लिखी हुई है स्क्रीन पे। तो मुझे आपकी बात पता लग गई थी कि आपको उर्दू चाहिए, तो मैंने उर्दू में ट्रांसलेट करके बोला। और ये बड़ा जबरदस्त मुद्दा आपने खोला एडम साहब कि सबसे पहली बात तो इनको ये अलाउड ही नहीं है कि नॉन मोमिन कंट्री में ये कुरान लेके जाए और दे। ये तो हराम है, हराम काम कर रहे हैं ये लोग। अच्छा, वो कह रहे हैं कि ट्रांसलेशन के साथ भी अरबी टेक्स्ट नहीं होना चाहिए। सर अरबी टेक्स्ट नहीं होना चाहिए, अगर ट्रांसलेशन है तो सिर्फ ट्रांसलेशन होना चाहिए। जी हाँ। जी, क्योंकि अरबी टेक्स्ट को हाथ लगाना नजिस का काम ही नहीं है। द होल आइडिया है कि मैंने लास्ट टाइम सेल्स, अगर आप मेरी समरी पढ़े लास्ट की तो उसके अंदर मैंने जी। इसका हिंट दिया था, हाँ। ठीक है। और मैंने हिंट इसी वजह से दिया था कि लास्ट टाइम चूंकि बहुत गर्म दिन था तो उस टाइम पे मैं ये लाना नहीं चाह रहा था। मुझे पता था आपने पार्ट 2 तो करना ही करना है, तो आई वाज लाइक पार्ट 2 में लेके आऊंगा। लेकिन मैंने हिंट दे दिया था समरी में कि यार बाय डिफॉल्ट आप कुरान ला ही नहीं सकते नॉन मुस्लिम कंट्री में। और इसके ऊपर अंग्रेजी चैनल पे 2 या 3 स्ट्रीम्स हैं, क्योंकि सबसे पहली दफा कुरान चलाया गया था सर 2020 के करीब इसी टाइम पे दौरान कोविड किसी ने किया था, जिसपे मुसलमान बड़े बोले थे। वो कौन सा बंदा था? आई डोंट नो। हेलो हेलो आइए हाँ जी, हेलो, आइए हेलो। आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? अभी आ जी रही हाँ है जी। जी, रिजवान मैं भाई, आपसे ये बोलिए। कहना चाहूंगा। देखिए भाई, कुरान जो है ना, कुरान क्या कहते हैं कि इजाजत है, कुछ शराइत के साथ हम काफिरों को कुरान दे सकते हैं। दे दें, वो मुझे आर्टिकल दें, रेफरेंस दें, हदीस दें, फिका दें, फतवा दें, शरा दें, कुछ दें। जी, फतवा दारुल वेबसाइट खोल के आप देख लें। जी प्लीज दे दें, रेफरेंस दें, लिंक दें। और इन फतवों का क्या जी, करना है वो दारुल भी बता दो। वेबसाइट पर आप उर्दू में क्या कहते हैं टाइप करें हजरत कुरान हजरत बात को। सुने, हजरत बात सुने, हजरत लिंक बात दे सुने। दो, लिंक। लिंक दे दें, हम जी पढ़ते जी, हैं। अभी आपको इन सारे फतावाज ने दिखाया है कि आप उसको क्या करना है? ट्रांसलेशन दे सकते हैं, अरबी नहीं दे सकते, ठीक है। आपके दारुल उलूम ने भी यही लिखा होगा, जाके पढ़ लेना, कि ट्रांसलेशन दे सकते हैं, अरबी नहीं दे सकते जब तक वो मुसलमान नहीं है, भाई जब वहाँ तक उसने वजू नहीं किया। सुनिए, अरबी टेक्स्ट नहीं दे सकते। देखिए भाई, आदम भाई, उसमें ऐसा कोई भी शर्त नहीं लगा उस वक्त में, उसमें मुतलक सर अच्छा, जी कहा लिंक मुझे गया दो, दे आप लिंक। ना, कुरान दे सकते लिंक हैं। दो लिंक यार। दे दो, प्राइवेट चैट में लिंक दे दो रिजवान भाई, प्राइवेट थोड़ा चैट में थोड़ा लिंक दे सब्र दो। करें, इंशाल्लाह मैं आप हाँ हाँ, टाइम ले, टाइम ले। जो और ये थोड़ा जो एक लोगों ने सेकंड। इस्लाम क्यूए और इस्लाम वेब ने जो फतवा दिया है, वो भी मल्टीपल आर्टिकल्स, इसमें आपका क्या कहना है वो भी आपने जवाब देना है। क्योंकि यहाँ पे तो ये इजमा नकल कर रहे हैं। द स्कॉलर्स आर ऑल अग्रीड, यूनानिमस उलमा एग्रीमेंट। इस बात पे इत्तेफाक कर चुके हैं। जी सर, अरे मैं वो आपको एक लिंक कॉपी करो क्या कहते भाई, देख भाई भाई आप रिजवान भाई,
جی میں آپ کو رضوان بھائی دکھا وہ رہا ہوں کہ آپ کو دکھ پا رہا بھائی ہے. وہ جان نہیں یہ دکھ رہا لنک بھائی ہے دکھا کاپی برابر. کرو اور پرائیویٹ چیٹ میں پیسٹ کر دو بھائی, کیا مسئلہ ہے, رو کیوں رہے ہو؟ لنک کاپی کر کے دو نا, ابھی یہاں پہ اوپن کر دیں گے, کیوں اچھا ٹینشن لے رہے ہو؟ تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, تھوڑا سا میں وقت چاہوں گا آپ سے. جی لے لیں لیجیے وقت, لے لیجیے وقت لے لیجیے, کچھ سپر چیٹ. دیکھ لینا. سوال ہے کیا غیر مسلم کو قرآن پڑھنے کے لیے دینا جائز ہے؟ آئیے جواب دیتے ہیں. فتویٰ: غیر مسلم کو قرآن شریف دینا جائز ہے. ہو سکتا ہے اللہ اس کی برکت سے اس کو سلام کی توفیق دے, مگر اس کو پاک صاف ہو کر پاک صاف جگہ پر بیٹھ کے پڑھنے کی ہدایت کی جائے گی. واللہ عالم. انہوں نے نہ تو کوئی ریفرنس دی ہے, انہوں نے نہ کوئی کچھ نہیں. ریفرنس دی ہے, نہ کوئی ہاں قرآن حدیث کچھ نہیں دیا. انہوں نے صرف یہ کہہ دیا ہے کہ اس کو ہدایت کر کے قرآن دے دو. عربی والا دو, ٹرانسلیشن والا دو, کون سا دو, کچھ نہیں کہا. مجھے بتاؤ, میں نے جو آپ کو آرٹیکلز دکھائے ہیں جو کہ فتاواز ہیں اسکالرز کے, نہ تو یہ فتویٰ ہے نہ یہ کوئی ریفرنس کے ساتھ ہے. اس نے اینڈ میں لکھ دیا واللہ عالم بائے بائے ٹاٹا, ہمیں نہیں پتا, اللہ کو پتا ہے, ہمارے مطابق دے دو لیکن ہدایت کر کے دے دو. کس جی ریفرنس کے طور پہ, جی کیا ایڈم بھائی, ریفرنس ہے؟ ایڈم بھائی میں آپ سے, ایڈم بھائی دیکھیے, ایک مفتی ہوتا ہے نا, وہ اگر فتویٰ دیتا ہے ہیلو تو بھائی, اپنے من سے نہیں ہیلو, دیتا ہے, ہم من سے اس کے دیا ہوا ہے, سامنے. یہ کس نے دیا ہوا ہے, کس ریفرنس سے دیا ہوا ہے, کیا دیا ہوا ہے, مجھے وہ بتاؤ. کیونکہ میں نے آپ کو 4-5 فتوے بتائے ہیں, قرآن کی آیتیں بتائی ہیں, اس کے علاوہ میں نے آپ کو ملٹیپل چیزیں بتائی ہیں ان ود جی ریفرنسز. اس جی نے کیا ریفرنس دی ہے؟ جی میں نے آپ سے یہی درخواست کی تھی کہ بھائی یہ جو آپ حوالہ دے رہے ہیں آپ اس طرح سے اردو میں دے دیں نا, تاکہ مجھے سمجھ میں آئے. آپ انگریزی پہ دے رہے تھے, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, اس لیے میں نے آپ سے درخواست ارے کی بھائی تھی میں کہ نے آپ اردو اردو میں میں دے دیں. ٹرانسلیٹ کر کے بتایا آپ کو. اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے بتایا نا رضوان بھائی. بھائی دیکھیے, ایسے بہت سارے ویب سائٹ ہوتے ہیں, ان کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا, معتبر ویب سائٹ ہونا چاہیے. اور ارے جس طرح سے میں معتبر نے ہے بھائی, دیکھیے یہ جو اسلام کیوں ہے بھائی, اسلام کیوں ہے, معتبر ویب سائٹ ہے, اسلام ویب .net معتبر ویب سائٹ ہے, اچھا یہ کوئی یہودیوں کی ویب سائٹ نہیں ہے. لو جی آؤ جی آؤ, یہ لو آ گیا, دارالعلوم دیوبندی کا ہی آ گیا ایک اور, یہ لو آ گیا میرے پاس, ایک سیکنڈ. میں چوم لوں مٹی اس جگہ کی. اب سیم ویب سائٹ کیا کہہ رہی ہے, سنیں, سیم ویب سائٹ کیا کہہ رہی ہے. وہاں پہ انہوں نے کوئی ریفرنس نہیں دیا, کوئی کچھ نہیں دیا. اب جو ریفرنس والا بندہ آیا وہ کیا کہہ رہا ہے, سنو. آج کل غیر مسلموں کو قرآن تقسیم کرنے کا رواج چل رہا ہے, اس کی کیا شرائط ہے؟ جو قرآن انگریزی یا کنٹری ہو تو اس قرآن کو چھونے یا پڑھنے کے سلسلے میں کیا مسئلہ ہے, کیونکہ غیر مسلمان تو ناپاک رہتے ہیں, برائے کرم اس میں رہنمائی کریں. سیم ویب سائٹ. اب جو آپ سنیں, قرآن کو کافر قرآن دینا 2 شرطوں کے ساتھ جائز ہے. میں نے کیا کہا تھا, شرطیں ہیں. نمبر 1, وہ پاکی کی حالت میں ہو, یعنی غسل کے بعد چھوئے, تو اس کا مطلب وہ مسلمان ہو چکا ہے آدھا. دوسری شرط, اس سے کسی قسم کی بے ادبی کا اندیشہ نہ ہو. جب آپ قرآن بیچتے ہیں, ویریفائی کرتے ہیں بے ادبی کا اندیشہ نہیں ہے. وہ اس نے ساتھ میں دیا احکام القرآن کا ریفرنس, شیخ المفتی شیخ رحمت اللہ علیہ کا. اب قرآن انگریزی یا کسی اور زبان میں ہونے سے مراد ہے کہ اگر قرآن کا صرف ترجمہ ہو, عربی الفاظ قرآن کے بغیر, تو ایسا کرنا جائز نہیں. عربی قرآن دینا جائز نہیں. تمہاری ویب سائٹ ہے جو تم نے دیا, دارالعلوم دیوبندی. ارے بھائی, ہمیں بے وقوف سمجھا ہوا ہے یا خود بے وقوف بننے کی کوشش کرتے ہو تم؟ دیکھیے, خود بے میں نے آپ وقوف سے, ہو میں نے یا دیکھیے, ہمیں میں بے نے کوئی وقوف انکار بناتے یا ہو؟ تو پھر یہ ارے دارالعلوم دیوبندی اللہ کے سیم ویب بندے, سائٹ ہے, کیا کروں اس کا؟ ارے بھائی میں نے یہ کہا تھا کہ آپ مجھے بتائیں, میں ماننے کے لیے, میں نے یہ کہا تھا آپ آپ نے معتبر بتا دیکھیے, دیا نا آپ نے یہ رضوان بھائی, پیش کر دیا, میں نے مان لیا نا بھائی. میں نے کوئی معتبر کیا منع ہوا, مطلب, ایک منع سیکنڈ نہیں بھائی, کیا تھا یا تو ہیلو, مان لیا. ارے ایڈم صاحب بس مان لیے, وہ بحث نہیں کر رہے, مان لیے. اب آپ کا نیکسٹ مدعا رکھو کہ پھر گستاخی کی وجہ تو یہ لوگ خود ہے جو انڈیا میں قرآن بیچ بھی رہے ہیں عربی کے ساتھ, اور لوگوں کے پاس آ بھی رہا ہے. تو اب اس پہ کیا کہنا, نیکسٹ سوال کرو. بھائی مان لیا, اچھے بھائی ہے, میں تو پہلے ہی بولا تھا رضوان بھائی اچھے ہیں. ایڈم صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. نہیں سر, میں بول بھی نہیں رہا, اب انہوں نے بولنا کہ اب ہر مسلمان کو سزا ملنی بھائی چاہیے دیکھو, جو قرآن میں بیچتے ہیں دیکھیے, یہاں پہ. بات یہاں پر کیا ہے کہ آپ کا موضوع یہ ہے کہ بھائی جو اس طرح
आवाज आपकी अरे ब्रेक हो रही है रिजवान भाई, गया आपका इंटरनेट गया। शायद मेरे वाईफाई में प्रॉब्लम हो रहा है। अभी सही है, अभी हेलो, सही है, आप अभी करिए, सही है, मेरे बोलो वाईफाई आप। में प्रॉब्लम हो रहा है। हेलो आ गई, जी, आ गई, आ गई, जी मैं ये कह रहा था कि आपका मौजू है कि भाई, फिर गई। तो मैं ये कहना चाहूंगा भाई देखिए, जो है कुरान मतलब कि बेहुरमती के बारे में, तो ये चीज क्या कहते हैं कि हम शरीयत में ये है कि भाई बेहुरमती बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसके लिए क्या कहते हैं कि सजा होगी। तो सजा हम तय नहीं करेंगे। देखिए अभी जो है इस्लामी हेलो हुकूमत भाई, नहीं ये है, सवाल नहीं है तो इसलिए भाई, ये हमसे सवाल जो नहीं होगा हम वो करेंगे। है भाई। क्या ओ भाई, ये सवाल नहीं है। मेरा सवाल ये है कि शरा के मुताबिक क्या आप अब हर मुसलमान को भी सजा मेरा दिलवाएंगे नेटवर्क इशू हो रहा है शायद। दिलवाएंगे जिसने कुरान बेचा नॉन मुस्लिम को? क्योंकि उसकी देखिए जो वजह एक है, होता है कि वो देखिए मेरी वजह बात बनने का सुनिए, कारण ये है ना कि सुनिए, नहीं नहीं, आपने देखिए गैर देखिए मुस्लिमों के लिए भी देखिए, कुरान रखा है। नहीं 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 नहीं, देखिए आप ये चीज आपका क्या कहते हैं कि देखिए एक अकलमंद इंसान इस चीज को ऐसी बातें नहीं करेगा। देखिए एक होता है कि किसी चीज को क्या कहते हैं कि बेहुरमती करना, एक होता है कि भाई लेना। अब जो बेच रहा है या दे रहा है, तो वो तो इसलिए तो नहीं दे रहा है ना कि भाई तुम इसकी बेइज्जती करना या इसकी बेहुरमती करना, ये करके, क्या उसने ये कह वेरीफाई किया करके था? या ये हेलो, सोच कर तो नहीं दे रहा ये है ना मेरे भाई। नहीं, वो एक दे रहा है सेकंड कि भाई। भाई ये पढ़ हेलो, करके। उसको अलाउड ही हेलो, नहीं है ना देना, लेकिन अलाउड ही नहीं रिजवान है। भाई उसको तो अलाउड ही नहीं है देना, जी अरबी के साथ देना उसको अलाउड ही नहीं है। अभी तो आपके लेकिन देवबंद का फतवा भी बता देखिए दिया। नहीं नहीं, अरबी देखिए, जी नहीं, हाँ, हाँ तो जो भी किसी गैर मुस्लिम को देगा तो वो ट्रांसलेट ही देगा अरबी इंग्लिश, जो भी नहीं ना, मतलब कि जो भी उसको समझ में आता हो उर्दू वगैरह, वो इस तरह का तर्जुमा का किताब देगा, कुरान देगा, ठीक है। तो किसने कहा? अब जहाँ अरबी देखिए वाला अगर दिया कोई है, दुकानदार कोई अरबी वाला शॉप है, बिक रहा है, ठीक है, वहाँ अरबी वाला बिक रहा है, अरबी वाला बिक रहा है, उसका क्या करें? कोई भी नॉन मोमिन भी जाके 250 अरे 300 भाई रुपया मैं दे के मेरी अरबी वाला बात कुरान भी सुने, आप खरीद बार सकता बार है। मेरी बात। हाँ तो आपने देखिए इसमें चेक एंड खरीदने वाले बैलेंसेस की क्यों नहीं गलती है, लगाया देखिए कि नॉन इसमें मोमिन तक बेचने नहीं वाली की जाए? क्या गलती है। हेलो, खरीदने वाले की क्या गलती है। गलती है? तुम बेच रहे हाँ, हो तो खरीद रहे हो ना। वो तुमने बेचा क्यों? भाई तुमने देखिए चेक एंड बैलेंसेस क्यों नहीं रखा? देखिए कुरान जो चीज है ना, मेरे देखिए असल बात देखिए कुरान जो है ना, शरीयत की तरफ से भी पाबंदी नहीं है, क्या कहते हैं क्या कहते हैं, पाबंदी कोई है, अगर कोई समझना चाहता हो, पाबंदी कोई है, पढ़ना चाहता हो तो उस पर पाबंदी है, पाबंदी है, पाबंदी है अरबी शरीयत वाला में। नहीं दे सकते आप, अरबी वाला नहीं पाबंदी दे अरे है। सकते, शरीयत में नहीं, पाबंदी मेरी है। बात सुने। हाँ, अरे लेकिन यहाँ पर शराइत है ना, अगर कोई चाह रहा है, देखिए मैंने क्या कहा नहीं, आपसे, शरायत कोई अरबी दुकान में खोला है, नहीं दे ठीक है, सकते, अरबी में नहीं दे सकते हो भाई, शरायत ठीक है। है, ठीक है, मैं ठीक है नहीं दे सकते, ठीक, हाँ ठीक है नहीं दे सकते, लेकिन अगर दुकान पे जा रहा आदमी लेने, तो वो तो अपनी पहचान बता के नहीं ले रहा है ना। अगर वो पहचान बता के लेता तो फिर वो भाई दुकानदार नहीं सेल करेगा ना इजाजत ही उसको, नहीं कि है, भाई तू गैर। इजाजत ही नहीं है। जब अल्लाह ने, तुम्हारे नबी ने शरीयत में कह दिया हाँ इजाजत ही नहीं है, तुम बेच क्यों हाँ रहे तो हो? ठीक है, मैं उस चीज को एडम भाई मैं मान रहा हूँ, सुनिए मेरी बात सुनिए। आप बोल रहे हैं ना इजाजत नहीं है, बिल्कुल, लेकिन यहाँ कोई गैर मुस्लिम अपनी पहचान छुपा कर जा रहा है, ठीक है, और वो दुकान तो से ले आप रहा है, क्या अरे तो चेक कर रहे हैं? दुकानदार को। यार, ओए ओए रिजवान, जी क्या चेक रिजवान, कर रहे हैं? रिजवान, ये देख, ये अब हदीस है, जी जहां से आया मैं अब हदीस से जी, दिखाता हूँ। तुम, क्या इंडिया एक इस्लामिक कंट्री है? नहीं भाई, ये इस्लामिक कंट्री कैसे हो सकता है, बेहतरीन। नहीं है ना ये इस्लामिक इस्लामिक कंट्री। कंट्री नहीं है, तो ये दारुल इस्लाम नहीं है, दारुल हरब है। आपके पास ये हदीसों के बवाल पड़े हुए हैं, मैं आपको हदीसों के बवाल दिखाता हूँ यहाँ पे। ये देखिए, हदीसों के बवाल सुनते हैं। सुना इब्ने अच्छा माजा। मैं आपसे एक दरखास्त करना चाहूंगा, अरे देखिए। चुप यार, यार चुप। क्या दरखास्त करना पहले चाहोगे? दलील ले इंग्लिश ले उर्दू में रिजवान भाई, नहीं है, पहले मेरे पास दलील उर्दू ले में ले। नहीं है, मेरे पास उर्दू में नहीं है। तुमने पढ़ना, खुद जाके पढ़ लो, रेफरेंस लिखे हुए। मैं तुम्हें उर्दू में कैसे दूं? देखते हैं, कोई उर्दू नहीं है इसकी। अंग्रेजी है, अरबिक है, पढ़ लो। अरबी पढ़नी आती है? नहीं आती है, मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है। मोहम्मद ने मना फरमाया है कि जब तुम एक नॉन मुस्लिम लैंड में जाओ तो कुरान मत लेके जाओ, लीड्स द एनिमी विल गेट होल्ड ऑफ इट, कि कहीं काफिर उसको पकड़ ना ले। सही हदीस। सुन इब्ने माजा।
सेम हदीस सही है। आगे चलते हैं। सही मुस्लिम, जब तुम एक भाई काफिर मैं लैंड में जाओ सुनिए तो सुनिए, मैं इस कुरान मत बात लेके को जाओ। इनकार नहीं करता हूँ कि आप मुझे रेफरेंस दे रहे हैं। मैं ओके, अगर नहीं आप मानता, इंडिया में आप कुरान लेकर क्यों गए हैं? काफिर लैंड, हो रहा है। हेलो यहाँ इंडिया बेचना ही में। बंद कर दो रिजवान हेलो, भाई, आपको बेचना ही बंद कर दो, जी कुरान को बेचना ही बंद जी कर जी दो, कुरान देखिए को बेचना बात ही यहीं बंद पर है। कर दो। देखिए अरे नहीं, देखिए ये एक चीज है, ये कुरान है, ठीक है, ये कुरान सबके लिए है। यहाँ बात देखिए, आप इस ये तरह से पाबंद, अरे ये कोई बात ही नहीं है रिजवान, ना। ये देखिए, ये रिजवान कोई कुरान आप सबके लिए है पाबंदी तो आपकी नहीं बात लगा रहे, समझ, देखो भाई, रसूलुल्लाह लगा रहे। मोहम्मद साहब झूठ बोल रहे थे या तुम झूठ बोल रहे हो? दोनों में से एक झूठ बोल रहा है यहाँ पे। हम भाई यहाँ पाबंदी नहीं झूठ, लगा रहे, देखिए आप मुझे पाबंदी आपकी रसूलुल्लाह ने सुनिए, लगाई है। एडम भाई एडम भाई, आप मुझे रेफरेंस दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? मैं अगर नहीं मानता तो आप देते ना भाई। आपने वो क्या कहते हैं, फतवा दिखाया, मैंने मान लिया। मैंने को बस तो देखने भर की दे दी था, आप जैसे दिखाए मैं तो मान भाई लिया ना। फिर आप आप लोग फिर बार बार कसूरवार हो क्यों ना, रेफरेंस दे रहे फिर हैं? आप लोग कसूरवार हो ना। बात यहाँ कोई पर काफिर देखिए, कसूरवार कसूरवार आप नहीं लोग। है, बात आपकी, और ये कह रहे हैं कि भाई जी, काफिर कसूरवार नहीं है, आप लोग कसूरवार नहीं हो। नहीं नहीं आप नहीं लोग नहीं, वहां पे कुरान कैसे? बेच क्यों देखिए रहे हो? ये कुरान आप क्यों नहीं है, क्यों? अरे देखिए भाई, वही तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। कोई आदमी बेच रहा है तो वो क्या कहते हैं कि गैर मुस्लिम को बुला बुला कर नहीं दे रहा है, या फिर जानते हुए भी बेच नहीं रहा है, ठीक है? यार, सामने वाली आप हदीस समझ पढ़ो रहे क्या हैं मेरी लिखा है। बात? आपको सामने हदीस पढ़ो क्या लिखा है। अल्लाह, हदीस क्या कहती है, पढ़ो। अरे भाई सुनिए ना, अब आप कह रहे आप यार कह रहे हैं कि भाई वो हदीस क्या सफर, कहती है, भाई तो आप जिस पढ़ो मुल्क तो में सही रह रहा तो यार। वहां तो आपके हदीस क्या आपके कह रही है? आपके आप बोल रहे कि इस हदीस के मुताबिक, नहीं मैं वही कह रहा हूँ कि आपके इस हदीस, आप कह रहे हैं कि इस हदीस के मुताबिक यानी कि मुसलमान कुरान हिंदुस्तान से क्या कहते हैं, कुरान हिंदुस्तान में ना रखे, यही कहना चाहते हैं आप? ना क्या रखे, हदीस क्या कह रही है, क्या ट्रांसलेशन कह रही रखे है? सिर्फ। हदीस क्या कह रही है, पढ़ो, क्या कह रही है। अरे हदीस आपने जो कहा वो हदीस आपने तो बयान कर दिया ना। मैं तो, आपने यही कहा कि भाई क्या कहते हैं कि हदीस, आपने यही हदीस का हवाला देते हुए कहा ना कि भाई क्या कहते हैं कि कोई कि मुस्लिम गैर क्या कहते हैं काफिर के जब दियार में जाता है उस वक्त कुरान साथ में ना ले जाए, यही कहना चाहते हैं ना आप इस हदीस के हवाले से? मैं नहीं कहना चाह रहा, हदीस क्या कह रही है वो समझाओ मुझे। हदीस क्या कह रही है, समझाओ मुझे। अल्लाह के मेरी बात को थोड़ा सुने। मैंने आपसे ये कहा कि आप इस हदीस सर के मैंने कहा हवाले से ये हदीस कहना क्या चाहते हैं। कह रही है वो तो समझाएं मुझे। मैं आपसे कह रहा हूं ये हदीस क्या कह रही है, मुझे समझाएं। आप देखिए, ये हदीस के यही है ना कि भाई क्या कहते हैं कि आदमी कहीं जा रहा है एक दूसरे के काफिर के क्या कहते हैं कि मुल्क में, तो वहां कुरान शरीफ साथ ना ले जाए, यही कहना चाहते हैं? ओके, मैं नहीं कहना चाह रहा, हदीस कहना चाह रही है, राइट। तो क्या इंडिया एक काफिर देश है? हाँ है। मुझे बताएं इंडिया में कुरान ही क्यों है, अरबी वाला मैं इनको एडम साहब उर्दू भी लेके आ जाता हूं ताकि इनका है? ये डाउट नहीं रहे। दिखाओ यार, दिखाओ उर्दू, उर्दू वाला दिखाओ। हाँ पढ़ो भाई। जूम कर दो थोड़ा सा इसके लिए। नहीं ये एप्लीकेशन है ना, ये जूम नहीं होगा, ओके, ये इतने में तो पढ़ने में आ जाएगा। पढ़ो। हाँ। जी जी, जब कुफ्फार के हाथों हाँ गिरफ्तार होने का डर हो ये तो यहाँ कुरान से मजीद हदीस शुरू है, वो साथ तो लेकर कुफ्फार, यहाँ से जी हदीस है कुरान भाई। मजीद साथ लेकर कुफ्फार की ममानत बयान की है। अच्छा ठीक है, नीचे नीचे है ना? हाँ ठीक है, हाँ इधर से हदीस ठीक स्टार्ट है, है, यहाँ सनद से पढ़िए। छोड़कर मैं डायरेक्ट, रसूलुल्लाह, ठीक है मैं, जी हाँ उमर जी से जी मतन रिवायत पढ़ है रहा कि हूँ। यहाँ से पढ़िए। रसूलुल्लाह उमर सल्लल्लाहु से अलैहि रिवायत है कि वसल्लम, जी जी मैं डायरेक्ट मतन पढ़ रहा हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मनों के मुल्क के तरफ उस डर की वजह से कुरान साथ लेकर सफर करने से मना करते थे, कहीं कुरान दुश्मनों के हाथ न लग जाए। जी बिल्कुल, आप मैंने आपसे आपने कहा था, मैं उस चीज को समझा था। तो आप अब इस पर इश्काल क्या करते हैं? क्या इंडिया में अगर आप कुरान इसी तरीके से लेके गए हैं, क्या काफिरों के हाथ कुरान लग सकता है? देखिए पहली बात की, देखिए ये पूरा का पूरा मुल्क जो है ना, ये काफिरों का नहीं है। यहाँ हर तरह के इंसान, देखिए हेलो भाई, आप ये कह रहे रिजवान, हैं कि हाँ रिजवान, रिजवान,
रिजवान, ये हाँ हाँ मुल्क मैं काफिरों का है। समझ गया, इस सब के सब आ रहे देखो सब। इस मुल्क अरे में रिजवान, इस मुल्क में मुसलमान भी रहते हैं, मैं बाकी लोग भी समझ, रहते हैं, लेकिन बिल्कुल मुल्क बिल्कुल, मुल्क लेकिन मुल्क मुल्क जी, काफिरों का ही है। लेकिन यहाँ हर मजहब को उसको क्या कहते हैं कि उतनी छूट मिली है, उसको इतनी रिजवान आजादी है कि वो अपने रिजवान वो तो रिजवान क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन ये कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं आपने बताना है, आपने मुल्क इस्लाम काफिरों को का है? बताना है। मुल्क काफिरों का है? जी ये मुल्क काफिरों का है? देखिए यहाँ सब रहते हैं, हम कैसे यार उसको क्या देखिए कहते नहीं यार, हैं, मुल्क काफिरों का है कि नहीं है यार? क्या बकवास है यार, सिंपल सवाल है। हाँ है, इस्लामिक ओके। मुल्क है या काफिरों का नहीं यहाँ मुल्क है, सब दो एक में से साथ एक रहता है, चीज। हम काफिरों का मुल्क कैसे कह सकते यार हैं भाई, ये यहाँ काफिरों मुसलमान का भी रह रहा है मुल्क ना। है, ये काफिरों का देश है, इस्लामिक शरा नहीं है, इस्लामिक देश नहीं है, इस्लामिक रूलर नहीं है, काफिरों का हाँ देश है। ये देखिए, सिंपल। आपका ये जुमला सुनो, गलत है, देखिए आप ये कह रहे हैं कि मेरा जुमला बिल्कुल ठीक है, ये काफिरों का देश है, वरना पाकिस्तान अंब लेने के लिए बनवाया था बैंचोद 1947 में। झूठ पे झूठ बोली जाते हैं यार। 1947 में पाकिस्तान क्यों बनाया था? अलग क्यों किया था कि आपको हेलो, अलग मुल्क चाहिए? आपको आवाज आ अगर रही ये है? मुल्क निकाल यार इस आ रही साले को आ रही है। बैंचोद, हेलो साला अच्छा बकवासी इंसान, अच्छा, जाने दो एडम, जाने बेगैरत। दो। हेलो। इसको बैक रिजवान स्टेज में भाई बोलता हूँ, तुम्हारा इसको नेट ताकि तो सुने। सही करो यार, रिजवान भाई तुम्हारा नेट तो सही करो, मुझे तो तुमसे और एक 1947 बात करनी में थी। हाँ 1947 में साहिल साहब इन्होंने तोड़ दिया, इसी बेस पे हाँ, कि इन्हें अपना सही मुल्क बात। चाहिए। आज ये हाँ इंडिया को इस्लामिक कह रहे मुल्क हैं नहीं जी चाहिए। ये हमारा भी मुल्क है। किस हिसाब से तुम्हारा मुल्क है? 1947 में तोड़ा क्यों था? वापस लो उसको, जोड़ो उसको साथ में। बगैर तो 25 मिलियन तुम लोग यहाँ पे बैठे हो, जोड़ो वापस, अखंड भारत बनाओ, फिर कहो हमारा भी देश है। हरामखोर। सही बात है, वो तो इस्लाम के नाम पे तो वो पाकिस्तान को अलग किए थे, फिर ये कैसा इस्लामिक देश हुआ? ये इस्लामिक आज देश है ही नहीं। पाकिस्तान में पाकिस्तानी होने की वजह से मैं पाकिस्तान नहीं जा सकता क्योंकि इस्लाम छोड़ दिया। इतनी बगैरती है। वापस जोड़ो, मैं वापस आऊं पाकिस्तान, इंडिया का लॉ लाओ वहां पे, मैं आता हूं अच्छा वापस इनको है पाकिस्तान। ना एडम साहब, थोड़ा सा है ना, इसको थोड़ा सा इजी करके इनसे एक सवाल मैं पूछता हूँ। रिजवान भाई, इस्लाम में ये जो दारुल हर्ब आपको पता है? रिजवान भाई अनम्यूट करें, अनम्यूट करें रिजवान भाई, या हमने म्यूट किया है क्या इनको? नहीं, ये तो खुद से म्यूट है। बिल्कुल अच्छा जी। रिजवान भाई एक बात बताओ, इस्लाम में कौन कौन से कॉन्सेप्ट है? दारुल हर्ब, जहां हम जितना हमको मालूम है दो ही है, एक दारुल हर्ब और एक दारुल अमन। क्या आप इस बात से अग्री करते हैं, या आप हमें कुरान और हदीस से रेफरेंस बता के तीसरा वाला भी जगह बता सकते हैं? तीसरा देखिए भाई, हम्म, अच्छा ये बताइए, यहाँ पर क्या किसी मुसलमान को नमाज पढ़ने के लिए नहीं दिया जा रहा? अभी वो सवाल नहीं है, अभी मेरा वो सवाल नहीं है कि नमाज दिया जा रहा है नहीं दिया जा रहा, मैं कह रहा हूं ये दो कॉन्सेप्ट के अलावा, ये दो नहीं ऑप्शन के अलावा मैं कुरान और हदीस में आपको तीसरी आपके जगह सवाल का मिलती ही है? जवाब दे रहा हूँ। देखिए नहीं, जवाब आप नहीं दे रहे, देखिए आप मैं आपको सवाल कर रहे हैं। आपके सवाल का ही जवाब यही तो अच्छा ये बात है, दारुल इस्लाम आप माना एक ही जाएगा बात फिर? को उलझ रहे हैं, आपको पता चलो है। मैं आपके हिसाब आप से चलता जवाब हूँ, रिजवान देखिए, भाई, मैं आपको मैं आपके हिसाब से चल रहा हूँ। ठीक है, चलो यहाँ मुसलमान नमाज भी पढ़ते, जी रोजा भी रखते हैं। अब बताइए, इंडिया को दारुल इस्लाम माना जाएगा? हाँ जी। दारुल इस्लाम मानेंगे इंडिया को? देखिए ना, मैं आपसे कह रहा हूँ, देख अरे यार आप नहीं, दारुल सुने तो इस्लाम बात की, आप एक मिनट सुने तो साहिल सही भाई, यार, आप एक बार अपनी इनसे बात को पूछे दारुल आप इस्लाम अपनी किसे बात को कहते हैं थोप और रहे हैं। दारुल हरब किसे कहते हैं, मेरी उसका बात रेफरेंस दे सुनते दे। ही नहीं, यही तो गड़बड़ है। तो रेफरेंस सवाल से का बात जवाब करो। दो ना। दारुल इस्लाम आपने दारुल कैसे हरब तो कहा कि उसी इंडिया बात की दारुल मैं इस्लाम आपसे है? कह रहा हूँ। मैं आप भाई मैंने इस्लाम कहिए दारुल कहिए। इस्लाम का कहा ही नहीं है मेरे भाई, आप कह रहे हैं। सुने तो अच्छा, सही तो मैं आप क्या क्या कह रहा कह हूँ, रहे देखिए हैं इंडिया को? आप ठीक है, आप सुनेंगे क्या? आप अपनी बात मेरे ऊपर थोप रहे सुनाओ, हैं। ठीक आप है, सिर्फ मैं बता दे आपसे ये कह इंडिया रहा हूँ, किस में देखिए आएगा, दारुल इस्लाम में आएगा, दारुल जी हर्ब जी में? जी, सीधा सीधा आंसर दे। देखिए मैं आपसे कह रहा हूँ, देखिए सीधा सीधा ही दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए ये दारुल कुफ्र, इसमें कोई इसमें शक नहीं है कि ये दारुल इस्लाम है नहीं, दारुल हर्ब है। लेकिन ये हम्म, चीज देखिए माहौल के हिसाब दारुल से होता है। हर्ब देखिए है, मक्का जो माशाल्लाह, सच दारुल बोल ही सुनिए दिया, ना, हर्ब मेरी सच है। बात निकल सुनिए। आया।
यहाँ दारुल हर्ब है। क्या मेरी बात सुन मेरी बात सुने, मेरी बात सुनते सच्चाई नहीं। निकल देखो यही जाती तो है चीज मुंह है। से, दारुल हर्ब है आप लोग जी। अब इसमें जलेबी बनाए 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 जलेबी बनाए। हाँ मैंने गलती से नहीं बोला। मैं यही तो चीज है। आप अपनी बात कहे तो आप क्या कहते हैं कि सही बोल रहे हैं, हम बोलने लगे तो हम जलेबी बनाते हैं। ये कोई बात हुई यार? आप सुने तो सही। देखिए मैं ये कह सुन रहा रहा हूँ हूँ। कि आप लोग दारुल दारुल क्या कहते हैं कि आप लोग काफिर बोलते हैं ना, काफिर का मुल्क, ठीक है। हमें यहाँ पर खतरा ही नहीं है। हम यहाँ पर हर तरह की क्या कहते हैं ये अहकाम, शरीय अहकाम पर अमल कर रहे हैं। हम नमाज पढ़ रहे हैं, रोजा रख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। इस नहीं पर कर रहे शरिया हमको पे, नहीं पूरा कर रहे अमन शरिया है। पे, हमको नहीं कर रहे, 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 नहीं कर रहे। अगर कोई कैसे चोरी करे उसका चोरों हाथ के कटता है। चोरों अगर कोई चोरी करे, चोर के हाथ अगर काटते हो। चोर के हाथ काटते हो, जो शराब पिए उसको 100 कोड़े मारते हो, बताओ मुझे। नहीं कर सकते इस्लाम पे यही अमल। तो फिर इस्लाम अगर के ऐसा सिविल कर सकते कवानीन, तो फिर वो इस्लाम के दारुल इस्लाम हो जाता ना। तो फिर दारुल एग्जैक्टली, इस्लाम तो हो आप जाता। इस्लाम के सारे कानून नहीं कर रहे, इसलिए दारुल हर्ब है। दारुल बात हर्ब खत्म। है, दारुल हर्ब है, आपने हाँ खुद तो कहा दारुल हर्ब हाँ है। तो आप हाँ तो मैं कहा, मैं यही चीज तो मैं आपसे कह रहा हूँ। मैं कोई, आपको लगता है कि मैंने जो दारुल हरब का गलती से कह दिया क्या? मैंने तो बिल्कुल अकल दारुल हवास हर्ब के साथ नहीं कहा है है तो मैंने। आप बात, रिजवान भाई थोड़ा सा अभी सब्र करो। जब आप ये मान चुके हो कि ये दारुल हर्ब है, काफिरों का देश है, दारुल हर्ब है, क्योंकि दारुल इस्लाम है ही नहीं, तो अब रसूलुल्लाह की हदीस के मुताबिक आपने इस कंट्री में कुरान को रखना ही नहीं है। अरे नहीं सुने भाई। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। दारुल हर्ब होता है, यानी कि देखिए हर्ब किसके, हर्ब का मतलब क्या होता है? लड़ाई। हाँ बस, यहाँ लड़ाई नहीं हो रही है। दारुल हर्ब मैं आपके मीनिंग एक के सेकंड, हिसाब एक से सेकंड, एक कह रहा हूँ दारुल हर्ब, सेकंड। लड़ाई हो रही ठीक है, है। लड़ाई हो रही है लड़ाई। किसने कहा नहीं हो रही? लेकिन ये नहीं खुद हो मान रहे दारुल हर्ब है। नहीं हो अब वो रही। लड़ाई हो या नहीं हो नहीं, उससे मैं क्या फर्क आपके पड़ता है मीनिंग के भाई, हिसाब, दारुल हर्ब है। साहिल भाई मैंने आपके मीनिंग के हिसाब से कहा था। है रिजवान, मैं रसूलुल्लाह की बात कर रहा हूं, मैं मेरा मीनिंग रिजवान, देता ही नहीं हूं। मैं बताता हूँ हर्ब किस तरह हो रहा है। यहाँ पे हर्ब है अल्लाह और उसके रसूल के साथ, चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 33 के साथ। अल्लाह और उसके रसूल के साथ हर्ब हो रहा है यहाँ पे। लिहाजा ये दारुल हर्ब इस वजह से है, लड़ाई का देश इस वजह से है क्योंकि अल्लाह के अहकामात यहाँ पे नाफिज नहीं है। यहाँ पे रिबा चलता है जो कि अल्लाह की अहकाम के खिलाफ है, और अल्लाह कहता है मेरी उससे लड़ाई है जो हिबा है। चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 277, 78 एंड 79। अल्लाह देखिए के साथ देखिए लड़ाई हो रही है यहाँ पे। चुप करके आपके सुन यार। अल्लाह के कवानीन यहाँ पे नाफिज नहीं है। दारुल हरब इस वजह से है, तो लड़ाई का देश है। लड़ाई सिर्फ ह्यूमन के साथ नहीं होती इस्लाम में। इस्लाम में दारुल हरब कहा जाता है जिसकी अल्लाह के साथ लड़ाई है। तुम्हें यही नहीं पता? दारुल हरब इंसानों के साथ लड़ाई का देश है ही नहीं। तुमको तो दारुल अरब की बेसिक डेफिनेशन नहीं पता। दारुल अरब वो है जहां पे अल्लाह ये के साथ ये लड़ाई है, ये ये उसके डेफि कवानीन ये नहीं है। तुम्हारा डेफिनेशन है, ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा है, ओके, ये तुम तुम्हारा मुझे दिखा आप दो। डेफिनेशन दीजिए है। अपना डेफिनेशन। तुम मुझे अपना डेफिनेशन दिखाओ जरा। अपना डेफिनेशन दे दे रेफरेंस के साथ। मेरा मेरा डिफरेंस। अच्छा तो आप फिर अच्छा यानी कि आपने ये कह दिया भाई, यहाँ पर जो कुरान अल्लाह उसके रसूल से जंग की बात है वो रिबा पर है। और वो रिबा क्या कहते हैं, काफिरों से क्या लेना देना, यहाँ मुसलमान से है। सिर्फ अब वो भी क्या कहते हैं कि सिर्फ रिबा की बात नहीं हो रही, सारे के सारे सिविल लॉज एंड क्रिमिनल लॉज यहाँ पे अल्लाह के इंप्लीमेंट ही नहीं अहकामात है। के बगैर हैं। दे आर हम्म। अगेंस्ट अल्लाह। ठीक है, और सो भाई दो। और एक फर्क सुन लो। एडम साहब इनको एक अच्छा अच्छा फर्क बता यहाँ देता हूं मैं। थोड़ा रिजवान भाई थोड़ा सब्र करो। असल में मुसलमान उस चीज को कर रहे या नहीं कर रहे, सवाल इस पे नहीं उठता है। सवाल इस पे उठता है कि वो जो जगह है वहां अल्लाह का कानून इंप्लीमेंटेड है या नहीं है। आप ले रहे हो नहीं ले रहे हो, आप में से कई मुसलमान लेते भी है, लोन लेते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, गिरवी रखते हैं सामान को रिबा के बदले पे। कुछ मुसलमान नहीं भी करते, दोनों है। ये मत कहो कि मुसलमान नहीं करते, मुसलमान करते भी है, कुछ बहुत से कम लोग जो है वो नहीं भी करते। सवाल इस पे ये नहीं है कि आप ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। बात ये है कि एज अ होल नेशन, एज अ होल, या ये लैंड एज अ होल, आपकी हुकूमत उधर है क्या नहीं है, आपकी शरीयत इंप्लीमेंटेड है क्या नहीं है, इससे डिफरेंशिएट किया जाएगा। आप क्या कर रहे हैं मुट्ठी भर के, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। रिजवान भाई हमको आपसे अरे ज्यादा यार मालूम है। आप सुनते
साहिल भाई, आप यहाँ पर सुन रहे मेरी बात? आपने ये कहा कि यहाँ पर लोन वगैरह जो भी लेते हैं मुसलमान, तो आपको यहाँ पर साथ में ये भी बात कहनी चाहिए कि जो लोग लोन लेते हैं या तो फिर उनको पता नहीं है, ठीक है, हेलो, या तो फिर वो सबको पता है जानबूझकर भाई, गुनाह कर रहे हैं। आपको ये इस सब पे लगाना है। तरीके से। इररिस्पेक्टिव अच्छा एक मिनट यार, रुको, मुझे मैं सिंपल इस ये पे बताओ react यार, मैं करता इसको अब रेफरेंस देता हूँ साहिल, मैं इसको रेफरेंस देता हूँ, मैंने निकाल लिया, हाँ इट टुक मी सम टाइम, मैंने निकाल लिया। तुम हूँ। मुझे हाँ नहीं दिखा सकते कि दारुल हरब लड़ाई का देश है। मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ कि दारुल हरब वो देश है जहां पे अल्लाह के कवानीन नहीं नाफिज। ये लो नहीं पकड़ो, है, मैंने रेफरेंस एग्जैक्टली। निकाल लिया। ये उमदा तो सालिक शरिया डॉक्यूमेंट, जिसके ऊपर कल मैंने बहुत ढेर सारी बातें करनी है, ये वही है। उमदा तो सालिक शरिया डॉक्यूमेंट, दिस इज द शरिया एंड इट सेज a formal legal opinion given by the Muftihans of Darul Uloom and his assistants in Deobandi, India state, that dealing in interests, etc., between Muslims and non-Muslims in the enemy land, Darul Harb, meaning areas in which the rules of Islam do not exist. Darul Harb क्या है? Darul Harb क्या है? जहाँ पे Meaning अल्लाह के कानून नहीं चलते। areas in which the rule of Islam does not exist. जी साहिल साहब, वही तो मैं भी कह रहा था ना, कि अब अल्लाह के आप और मैं तो कानून सही, जहाँ पे नहीं चलते। आप और मैं तो सेम कह रहे थे। अब इसने कहा था हम्म। नहीं, दारुल इस्लाम होता लड़ाई का देश जिसमें लड़ाई कर रहे हो इंसानों के साथ। अब उसका रेफरेंस ये देते, जो हमने कहा था उसका रेफरेंस हमने दे दिया। ले इससे रेफरेंस साहिल साहब। अच्छा, इसमें आगे देखो एक खतरनाक बात लिखी है, दिस फतवा स्टेट्स दैट इट इज परमिसिबल फॉर ए मुस्लिम टू बोथ टेक इंटरेस्ट एंड गिव इट and claims that India is an enemy land, Darul Harb. So there is no objection to dealing in interest there. And क्योंकि it आप lastly काफिरों permits को दे रहे Muslims हैं, to put क्योंकि their आप money in काफिरों the को दे रहे bank. हैं, क्योंकि आप काफिरों को नहीं, दे रहे हैं, तो काफिरों से इंटरेस्ट हाँ, लेना जायज है। हाँ, लेन देन दोनों कर सकते हैं आप, क्योंकि ये दारुल हर्ब है। हाँ, लड़ाई का देश है। तो यहाँ पे अल्लाह का कानून नाफिज नहीं है, इसलिए दारुल हरब है। अब ये मुझे बता दे वो रेफरेंस कि दारुल हरब का मतलब सिर्फ ऐसी जगह होती है जहां पे मुसलमानों से लड़ाई हो रही हो। प्लीज, जी इससे रिजवान बड़ा भाई, हमने डॉक्यूमेंट तो लेके अभी आओ। आपको, हाँ, हमने तो आपको शरिया दिखा दिया। रिजवान भाई अनम्यूट करके बोले, अनम्यूट कर ले रिजवान भाई। हम तो यहाँ पे सब खोल के बताएंगे आपको, खोल खोल के आपकी गंदगियां बताएंगे, फिक्र जी ना मैं करें। आपसे थोड़ा वक्त चाहूंगा, थोड़ा सा वक्त चाहूंगा। हाँ, अच्छा वक्त चाहिए इसमें, मतलब चले ढूंढने जाए में फिर वक्त वक्त ले। चाहिए, भाई को वक्त चाहिए दूसरे भाई से बात। अच्छा रिजवान भाई, ये हवाला आप निकालना थोड़ी देर में, अभी आप है क्या रिजवान भाई? क्योंकि देवबंद देवबंद कर रहे थे ना, मुझे सिर्फ एक हवाला इनसे पूछना है। रिजवान भाई है आप? लगता अबे चलो कोई आज आ आपने गया। उसकी हर एंगल से बजानी है लगता है। नहीं, मुझे मुझे बड़ा एक मस्त जो है ना वो रेफरेंस दिखाना है और पूछना है इनसे थोड़ा। जी मैंने आपको एक हवाला दिया है, दारुल वेबसाइट का फतवा दिया है। देखिए ये जो हिंदुस्तान है ना, ये दारुल हर्ब नहीं है, दारुल अमन, दारुल मुआहदा है, ठीक है। तो ये रिजवान, अभी इमाम तुमने मुंह से बोला था कि दारुल हरब है। नंबर दूसरी बात, ये आप पढ़े, ये कौन है? ये दारुल अलूम एंड इस असिस्टेंट्स इन देवबंदी। ये यहाँ पे जो उनका तो साली का वहां पे कह रहे हैं ये दारुल हरब है, दारुल अलूम वाले कह रहे हैं। ये कौन कह रहा है? पढ़ो तो सही भाई, साहिल भाई साहब, ये पढ़ मैंने के बताएं पहली लाइन मैंने उसको दोबारा। मैंने हवाला दिया, आप चेक A कर लो। formal मोहम्मद legal हामिद, मैंने भी तो हवाला opinion, दिया, आप चेक कर लो। तो तो दोनों में से भाई एक झूठे है, मैंने पूरा कौन ऑफिशियल झूठा है देखे, बताओ? झूठा जिस कौन है पे यहाँ पे? दोनों दारुल सुनो उलूम मेरे, देवबंद के हैं, देखिए झूठा कौन है? वो आपका हवाला, आपका हवाला आपके पास है, मुझे आपके हवाला के बारे में कुछ हेलो ना हेलो 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 हुक्म हेलो लगाना है, ना हेलो, ही ये कुछ मेरा बोलना अरे है। भाई हवाला जो हमारा है, हवाला नहीं है। ये मैंने किसने कहा मेरा हवाला है? एम ही अपनी मर्जी से। ये भाई हमारा हवाला हवाला आप नहीं है दे रहे तो भाई। आपका हवाला होगा ना, हवाला आप अपनी तरफ अरे तो से दे रहे, भाई यानी कि अरे ये यार, ऊंधा तो साली का डंगर। अरे रिजवान भाई, ये उम्दतुस ठीक साली के ठीक भाई। है, ठीक। अरे भाई इसको छोड़िए, मैंने आपको हवाला दिया क्यों है ना, छोड़ू इसको? दारुल नहीं, देवबंद मैं का ही इसको क्यों दिया है, छोड़ू? ठीक है। क्यों छोड़ू इसको? क्यों तो छोड़ू फिर इसको? इसको मैं जो बोल, मैं भी तो हवाला दे रहा हूँ ना, आप हवाला दे रहे हो तो कहाँ पे दे मैं भी रहे तो हो? हवाला ये दे जो रहा हूँ, यहाँ पे इसका क्या मैं भी करूं? तो हवाला दे रहा अभी हूँ, तुमने मैं बोला भी दे रहा तो है कि हवाला दारुल, दे रहा हूँ। अभी तुमने कहा था ना मुंह से, ये मुंह से कहा था या बुंडे से कहा था पहले कि ये दारुल अरब है? दारुल किससे कहा हर्ब है, था पहले? आपने तो बोला था।
मैं अभी फिर वही मुंह से कह रहा हूँ कि ये दारुल मुआहदा दारुल अमन है। तुम्हारा मुंह है कि टट्टी जिस है? मुंह से आपको जब दिल कहा था ना करता बदल दारुल लेते हर्ब, हो, जब दिल करता बदल लेते हो। तुम्हारा मुंह है कि टट्टी? जैसा अच्छा अच्छा, एक वो काम करो, जो एक काम समझना करो, समझो। रिजवान, मुझे कुरान और हदीस से दारुल मुआहिदा जो है ये बता दो। चलो, दारुल मुआहिदा है? हाँ, ये इन्होंने ये नया नई चीज टर्म निकाली निकाला है। है। अच्छा हाँ, छत्तीस दारुल मुआहिदा। ओए ये अच्छा, ये यहाँ से निकाला है इसने, ये जो इसने आर्टिकल दिया है। लो अरे जी, दारुल अमन ये दारुल मुआहदा ये दारुल हरब और दारुल दारुल इस्लाम अमन के बीच में एक नई चीज निकाल दी है जो कि शरा फिका में नहीं है, वो है दारुल हाँ, मुआहिदा। ये क्या चीज निकाली है? ओए भाई, ये हिंदुस्तान इस वक्त के मौजूदा हालात के तहत दारुल मुआहिदा व दारुल अमन अल अमान है। अबे ये दारुल मुआहिदा क्या है? जरा कुरान हदीस से बताओ, ये दारुल मुआहिदा कहाँ से, ये तीसरी टर्म कहाँ से निकाली भाई? ये क्या वही आई थी वो इनको? क्या तुम ये उर्दू रसूल नहीं है? पढ़े हो ना, अबे ये दारुल मुआहिदा क्या होता तुम है? नहीं पढ़े हो ना, इसलिए तुमको पता नहीं चलेगा उर्दू। हाँ, तो तुम अबे बताओ ना, चंदर तू हम बता। तो दलील मांग रहे हैं। वो हम नहीं पढ़े, पॉसिबल है। उसके लिए तुमको रिजवान भाई, हम नहीं पढ़े हैं, ये पॉसिबल है कि हो सकता है कुछ चीज जी हमसे छूट गई। हाँ, आपने क्लेम किया है, आपके दारुल उलूम वाले क्लेम कर रहे हैं, इसकी हमें दलील दे देना कुरान हदीस से। हमको तो जो रसूलुल्लाह की टीचिंग है उसमें तो दारुल हर्ब और दारुल इस्लाम का मिलता है। आप हमें बता दे कुरान हदीस से कि ये दारुल मुआहिदा कहां से आ गया है, कौन से रसूल ने ये टर्म बताया था? क्या ये खुद ही रसूल बन गए ये लोग, एहले चॉइस? जी रिजवान भाई, आवाज चली गई है आपकी। इनकी आवाज आ रही है क्या एडम साहब आपको? नहीं सर, नहीं सर। लो जी, मैंने ढूंढ लिया है। कोई मौलाना हुसैन अहमद मदनी है, उसने ये टर्म निकाली है दारुल मुआहिदा। ये इस्लामिक हाँ, वो टर्म क्या नहीं है। नबी है, रसूल है, कौन है वो? आई डोंट नो वो क्या है, लेकिन इसने टर्म निकाली है। मैंने लब तो लिया है कि दारुल मुआहिदा टर्म किसने निकाली है। तो ये दारुल मुआहिदा टर्म निकाली है इन्होंने नहीं 1950 में दारुल उलूम देवबंद ने एक फतवा जारी किया जिसमें इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान दारुल इस्लाह या दारुल मुआहिदा है, यानी हिंदुस्तान मसलहत और अमन मुआहिदा सरजमीन है। लो जी, ये इस्लाम में एक नया दर ऐड किया इन्होंने 1950 में, साहिल साहब, 1950 में, यानी कि 70 साल हुए वो मुश्किल। एक नया दर बना दिया इन्होंने अपने पास से ही ना, एवं ही एवं ही एक नया बना दिया। उन्होंने कहा यार, हम तो सारी दुनिया इसको दारुल हरब कहती है लेकिन हम यहाँ पे रहते हैं, तो हम इसको क्या करें? अच्छा यार, इसको दारुल मुआहिदा बना दें। लो जी साहिल साहब, नहीं, असल दारुल में मुआहिदा। एडम साहब, इनको पता है ना कि दारुल हर्ब बोलेंगे तो अभी की तारीख में तो दारुल हर्ब बोलोगे तो मोदी जी और योगी जी दोनों डंडा डालेंगे। दारुल हर्ब बोल के यहाँ पे फिर साथ में ये दावा भी नहीं कर सकते ना कि हम भारतीय हैं, हमें देश से मोहब्बत है। दारुल हर्ब बोल के कैसे ये दूसरा क्लेम कर सकते हैं? तो तो सर कॉन्ट्रडिक्शन उन्होंने हो जाएगा। सर तो इसका मतलब चालाकी ये की हुआ, है। इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने झूठ बनाया, और झूठ जो है वो इस्लाम में जायज है अगर आप उस झूठ का मकसद सही बात हो। जैसा कि कल मैंने दोबारा ये बात दिखानी है कि इस्लाम में झूठ बोलना बहुत जायज है, और मैं इसको दोबारा लेके आऊंगा। ये जो आपके सामने लिखा हुआ है, 1950 में दारुल उलूम देवबंद ने एक और अहम फतवा जारी किया जिसमें इसने वाज़ेह तौर पे कहा कि हिंदुस्तान दारुल इस्लाह या दारुल मुआहिदा है, मसलहत के तहत। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, यानी हिंदुस्तान मसालेहत मसालेहत के तहत दारुल मुआहिदा। मींस जब तक इनकी तादाद कम है तब तक दारुल मुआहिदा है, जब तादाद ज्यादा हो जाएगी ये कहेंगे यार दारुल मुआहिदा तो था नहीं, मुआहिदा तो हुआ नहीं हुआ, अब ये दारुल हरब है, आओ इस पर कब्जा करें, अटैक करें। मैन दिस ये इज तो मुआहिदा डिसेप्शन किया मैन। किसके साथ इन्होंने, किसके साथ वो मुआहिदा किया है और कौन से खलीफे के साथ मुआहिदा हुआ ये? यार साहिल साहब, मुझे रिजवान को ना थोड़ा सा अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि उसकी वजह से मुझे इतनी बड़ी डिसेप्शन से पर्दाफाश हुआ मेरा। मुझे हाँ, इस अच्छा, ये डिसेप्शन नहीं का पता मालूम ही नहीं था था। आपको?
مجھے انڈیا کی اس ڈسپشن کا نہیں پتا تھا یار. لائک یہ میں سر اس کو تھینک یو بولتا ہوں کہ اس کے آ جانے سے مجھے پتا لگا. میں تو سر اس کو پوری دنیا میں پھیلاؤں گا, میں تو ویسٹ میں پھیلاؤں گا. میں یہ بات جے اسمتھ اور اپنا ڈیوڈ وڈ تک لے کے جاؤں گا کہ بھائی جان انڈیا میں انہوں نے ایک اور در ایجاد کیا ڈسپشن. میں اس کو بھی دوں گا, لوئڈ کو بھی دوں گا, اور لوئڈ کو دوں گا کہ اپنے اس میں ڈالے دار الائز ان اسلام کی پریزنٹیشن کے اندر کہ واہ رے واہ, دار المعاہدہ بھی نکالا ہے انہوں نے تقیہ اور لائے کے اندر. واللہ حبیبی کیا بات ہے رے بابا. لیکن یہ معاہدہ ان لوگ نے کیا کس کے ساتھ؟ کون خلیفہ تھا ان کا جو معاہدہ کر چکا ہے؟ کون تھا؟ نام بھی سوٹ بھی تو نہیں ہو رہا. سر جی میں ارے معاہدہ تو یہ ہوتا کہ اگر یہ آپ کے ساتھ معاہدہ ہوتا کہ مسلمان جو ہے ان کا سارا سسٹم جو ہے وہ اسلام کے حساب سے چلے گا. تم کو نہیں ماننا ہے مت مانو, کورٹ ہماری ہوگی مسلمانوں کے لیے, اس میں کرمنل لا بھی ہوگا, اس میں سول لا بھی ہوگا, سارا کا سارا معاملہ جو ہے اسلام کے حساب سے چلے گا. تو سمجھ میں آتا کہ ٹھیک ہے چلو آپ نے اپنے لیے کم سے کم جو ہے بھائی مسلمانوں تھوڑا کے کام لیے. کی وجہ سے میں جا رہا ہوں, کام کی وجہ سے لیو ہو رہا ہوں ارے معذرت کے ساتھ. ایک 2 منٹ رضوان بھائی, صرف 2 منٹ ریکویسٹ ہے, صرف 2 منٹ دو پلیز. اچھا رضوان بھائی آپ دیوبندی ہے, آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے دیوبند کا فتویٰ آپ دے رہے تھے. رضوان بھائی یہ دیکھیے, یہ میرے پاس دیکھیے ایک بھائی میں کتاب ہے. دیکھیے دیوبندی نہیں ہوں, میں حنفی ہوں. ہاں حنفی ہے نا, کوئی مسئلہ نہیں, حنفی ہے کوئی مسئلہ نہیں. یہ دیکھیے یہ ایک کتاب بتاتا ہوں آپ کو, علم الفقہ بائی شیخ عبدالشکور فاروقی بھائی, ٹھیک ہے. یہ لکھتے ہیں کہ جن صورتوں میں غسل فرض نہیں, اس میں سے ایک مسئلہ بتاتے ہیں اگر کسی شخص کے خاص حصے سے بعد نہیں, رکو یہ والا نہیں, ایک یار منٹ وہ رکو, بتایا کہاں کہ گیا موڑ ہے؟ کے اندر لے لے. ہاں وہی والا. اسی طرح اگر کوئی عورت نہیں, اگر کوئی مرد کسی جانور, یہ والا بھی نہیں یار, کہاں گیا یار یہ والا. ہاں اگر کوئی مرد کسی کمسن, نہیں یہ بھی نہیں, پھر کیا ہے, اگر کوئی مرد, ہاں یہ والا دیکھو, اگر کوئی مرد اپنا خاص حصہ اپنے ہی مشترک حصے میں داخل کرے تو اس پہ غسل فرض نہ ہوگا. اب جن لوگوں کو اتنی اردو نہیں آتی میں اس کا صاف مطلب بتاتا ہوں. یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی مرد اپنا سامان مبارک موڑ کے اپنے لے لے. ہی پچھواڑے کے سوراخ میں گھسا لے, داخل کرے, یعنی اپنا ہی سامان مبارک اپنے پچھواڑے کے سوراخ میں داخل کرے تو اس پہ غسل فرض نہ ہوگا. جی رضوان بھائی یہ بھی فتویٰ ہے. آپ نے کہا تھا کہ جب کوئی عالم فتویٰ دیتا ہے, مسئلہ بیان کرتا ہے تو قرآن اور حدیث کے روشنی میں ہی بیان کرتا ہے, آپ کو دلیل بھی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. تو کیا رضوان بھائی آپ نے کبھی کوشش کی اپنا سامان مبارک اپنے پچھواڑی میں ڈالنے کی؟ جائے گا سر 3 انچ کیسے جائے گا؟ کیا آپ نے اسی کے لیے میرا وقت لیا تھا؟ جی بالکل اسی کے لیے لیا تھا, جواب دیجئے نا. تو پھر انشاءاللہ دیکھیے میں ابھی تھوڑا کام سے جا رہا ہوں, میں اگر آیا چیک آپ کریں کا گے جا اسٹریم کے, چالو رہا تو پھر میں آپ کو جواب دوں گا آ کر کے, ٹھیک ہے. نہیں تو جا کے چیک تو نہ کریے گا کہ اندر گھستا ہے کہ نہیں گھستا ہے. وہ آپ سے ڈسکس کروں گا ابھی, ٹھیک ہے, اگر آپ کا چالو رہا لائف. سمپل تو بتاؤ جائے گا کہ نہیں جائے گا. وہ بھائی کتاب آپ نے ڈائریکٹ کھول کر کے یوں ہی کوئی بھی کتاب دے دیا, وہ سب کچھ میرے کو پوچھا نہیں ہے آپ سے, میں نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ کون ہے, کیا کہتے ہیں میں مصنف بتایا کون ہے نا یا آپ کو, بولنے والا کون ہے, یہ سب چیز میں ارے نے آپ سے پوچھا یہ نہیں. دیکھو آؤں گا سارا ڈسکس کروں گا آپ سے. علم الفقہ بائی شیخ عبدالشکور فاروقی لکھنوی. بھائی وہ سب کچھ جاننا پڑتا ہے, کون سے مسلک کا ہے. ساحل صاحب سب کچھ جاننا پڑتا ہے ساحل بھائی یار, کم آن یار, اس کا 3 انچ کا اس کو کیا پتا ہو یار کہ موڑ کے لیا جاتا تھا لیا جاتا. یہ اس سے پوچھے جس کا کوئی 1.5 فٹ کا ہو یار. دیکھیے یہ غلاظت جو ہے نا, ہر وقت غلاظت دینا صحیح بات نہیں ہے, کبھی یہ قاعدے سے بھی بات کیا جاتا ہے. آپ کی کتب میں لکھی ہوئی غلاظت. میں آپ سے دوبارہ آ کے بات کر رہا ہوں. غلاظت کتابوں میں لکھی ہوئی ہے, غلاظت دینا اچھا نہیں ہوتا ہر وقت.
یار کیا لوگ ہیں یار، ان کے عالم بھی. نہ ساحل صاحب ایسی گندی بات نہ کیا کریں یار. نہیں لیکن ایڈم صاحب اگر 2 فٹ کا بھی ہوا، 2 فٹ کا بھی ہوا، مان لیں کہ 2 فٹ کا کچھ کرشمہ ہو گیا، 2 فٹ کا بھی ہوا تو مڑ کے لیکن اندر کیسے داخل ہوگا؟ ڈھیلا رہے گا نا. ڈھیلا تو اندر جائے گا نہیں ایڈم صاحب. اب سر وہ اب آپ کو پتہ نہیں جاتا نا، وہ مولانا کو تو نہیں نا پتہ نہیں جاتا. اب وہ بیسیکلی وہ 2 پٹھان تھے، ان کی آپس میں بحث ہو گئی. میں نے کہا یار ایسا کرتے ہیں کہ 1 سال بعد ملیں گے، جو موڑ کے لے لے وہ جیت جائے گا. اب ہوا یہ ہاں کہ 1 سال بعد دونوں ملے. جو پہلا پٹھان تھا نا، اس نے ٹک کر کے موڑ کے لے لیا. اس نے کہا یہ دیکھ میں نے کر لیا. جو دوسرا پٹھان تھا وہ اسی وقت رونا شروع ہو گیا. انہوں نے فوراً سے کہا بھائی یہ 2 نمبری ہے، یہ بدتمیزی ہے، 2 نمبری ہے، یہ مذاق ہے، یہ غلط بات ہے. اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا میں تو سمجھتا تھا کہ موٹے تھانی لے کے جانا ہے، یعنی کہ شولڈر سے لے کے جانا ہے، اس نے نیچے سے لے لیا تھا. تو سر اب ایسی باتیں نہ کریں لوگ یہاں پہ. پٹھان تو وہ میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ پٹھان کہتا ہے نا میں پشاور سے نکل چکا ہے. ہاں. اس کا وہ کیلا پہلے آ گیا تھا. اس نے کہا پٹھان صاحب پشاور سے نکل چکے ہیں. تو سہیل صاحب یہ آپ کو کیا پتا ہو سر، لمبے ہوتے ہیں بڑے. واہ بھائی واہ.